I have Rajeshwar joining me live right now. Rajeshwar is the ABVP president. Rajeshwar, can you hear me? Hello. Rajeshwar, you're Hello. live now. You're live Yes, now. yes. What many people are finding shocking is that in our national capital, you can have JNU, you can have the Sabarmati report screened in Parliament, but not screened on JNU campus. The Republic of JNU will not allow a screening. Why? Actually, actually we have got all the due permissions for the screening. हमारी टीम से पूरी बात हो चुकी थी, हमारे पास पूरा ड्यू परमिशन था. एंड लेफ्ट की हमेशा से हैबिट रही है कि ऐसी कोई भी स्क्रीनिंग हो, चाहे वो केरला फाइल्स हो, चाहे इवन बस्तर की मूवी की स्क्रीनिंग कराई थी, तो हमेशा डिस्टर्ब करते रहे हैं, हमेशा इसको बार बार डिस्टर्ब करते रहे हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ कि they had in this plan कि हम किसी, but since there were thousands of common students that gathered to see that screening, तो शायद इस वजह से उनका ये जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. But when they saw कि they had this in their mind कि उन्हें वो डिस्टर्ब करना ही करना है, so अंधेरे की तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए. When the volunteers, the guards went to see कि उस साइड में कौन है, कौन छिपा है, तो they did find some students running, I say miscreants, running away from there. So it is very obvious from their action that it was definitely the left organization students, because this is not the very first time they have done so. They have been doing this in the campus from past many years. What do they have? Why do they have a problem? They promote a banned documentary about the Prime Minister. They promote it, they show it. Yeah. But they have a problem with the Sabarmati report. So actually this is the way. Actually, they never want the truth to come out. वो अपने फेक नैरेटिव, फेक इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स को बरगला के रखना चाहते हैं. बिकॉज इवन हम जब केरला फाइल्स की बात करें या फिर जो बस्तर मूवी की बात करें, तो उसे भी वो एज अ प्रोपेगेंडा हमेशा बार बार बोलते रहते हैं. बट जब वो बात आती है हसीना पारकर को ऐसे प्रोटैगनिस्ट दिखा के करने की मूवी की, तो उसे एकदम आपकी आवाज कट रही है. आपकी आवाज कट रही है. थोड़ा आवाज कट रही है. I think I'm just losing you there. I'm just losing you there. Can you come to a better network, Rajeshwar? Can you just move to an area where there is perhaps a better network so that we can get your signal clear into our studios? Rajeshwar is the ABVP president of the JNU. Joining us live as we are the only channel breaking the story. Complete silence on all the Lutyens media networks, gone completely silent as the Tukde gang strikes again. I'm going back once again to Rajeshwar joining us. Better signal this time. Rajeshwar, ये जो टुकड़े गैंग थे, ओरिजिनल टुकड़े गैंग जो था वो जेएनयू से था. उमर खालिद अभी जेल से है. कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस पार्टी में है. ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है. ये बिल्कुल ये वही साबरमती ढाबा है जहां पे इन लोगों ने ऐसे नारे लगाए थे. तो उनको सबसे ज्यादा खुजली तो इस चीज से भी मच रही है कि इसी साबरमती ढाबा पे कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर कैसे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो उन्हीं के फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज कर रहा है. ये वही साबरमती ढाबा है. मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल अभी वहीं पे खड़ा हूं जहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग की जा रही है. तो नाउ जो जेएनयू की बदलती तस्वीर है वो उनको पसंद नहीं आ रही है. बदलती तस्वीर से मतलब कि नाउ जेएनयू इज ऑल्सो रियलाइजिंग व्हाट इज ट्रुथ, what is right, what is good for the country. So this is why they are not very happy with whatever that is happening here, and they keep disrupting such events. Yes. और ये लोग कौन थे? I mean, you're suspecting the left wing. Obviously, not just suspecting, we are very obvious because सवेरे से मैं बता रहा हूँ वो पर्चे निकाल रहे थे, WhatsApp ग्रुप में शेयर कर रहे थे कि हमें इकट्ठा होना चाहिए. We should not let these organizations screen such movies. So तो ऐसा वो प्लानिंग में थे. बट जैसा मैंने आपको बताया ना कि आम स्टूडेंट्स इतने ज्यादा नंबर पे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे कि दे डिड नो कि ऐसे सामने से अगर वो अपोज करेंगे तो द स्टूडेंट्स देमसेल्फ विल बैक देम ऑफ. सो इट वाज कि उन्होंने वापस से अपना वही जो आई से जो कावर्डाइज एक्ट होता है, जो छुप छुपा के हमेशा अटैक करने का तरीका होता है, जैसे वो बस्तर में या फिर नक्सलाइट्स एरिया में जिस तरीके से हमारे जवानों को मैं बोलूंगा छुप के मारते रहते हैं, बिल्कुल वही वो यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि कैसे छुप के और राष्ट्रवादी छात्रों को, नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स को हर्ट कर सके. हाँ जी. और आपको लगता है कि ये लोगों को अभी देर ऑल्सो फीलिंग द हीट बिकॉज देव लॉस्ट रेलेवेंस. अभी देखिए, जब ये पहले बार हुआ था टुकड़े गैंग का जो नारे लगे थे जेएनयू कैंपस पर, दैट वाज ऑलमोस्ट 8-9 years back, right?
Their relevance has Yes, 20 faded. Yeah, 2016. Yeah, Feb. Their relevance has faded Yeah. in the last 8 Obviously. years. ऑब्वियसली कि नाउ वही जेएनयू कैंपस जहाँ पे शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए सपोर्ट में लोग मार्च कर देते थे एंड द होल जेएनयू कैंपस यूज्ड टू रैली बिहाइंड हिम, अब वो जेएनयू कैंपस शर्जिल इमाम, उमर खालिद और ऐसे कन्हैया वाले लोगों को सीधा नकारता है. they openly criticize such evil elements and JNU अब मैं समझता हूँ कि JNU को इन मिसक्रिएंट्स की वजह से, इन evil लोगों की वजह से नहीं जाना चाहिए. एक्सेलेंस अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से जाना चाहिए. जेएनयू को जाना चाहिए अपने जय श्री राम के नारों की वजह से, भारत माता की जय के नारों की वजह से, और जो वो जेएनयू जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल इट इज ऑलवेज देयर फॉर इट. Yeah. And what is I'm hearing that the screening is still on, right? It's on till 8 o'clock. We just completed, अभी I'm just screening के सामने ही हूँ और अभी हमने just screening complete की. The movie has just completed and you can see the crowd all there. वहाँ पे आराम से अभी still it is 800 से 900 के आसपास students हैं. 7:50 हो रहे हैं. So it was a very successful event from our side because students stood with us in this event.